Hello students, MSc Semester 4, Cell and Molecular Biology, Specialization Zoology. So students, we were studying tryptophan operon, and so far you have studied that tryptophan operon is a group of genes that is used or transcribed together that codes for the components for production of tryptophan. Okay. This tryptophan operon is present in many bacteria, but it was first characterized in E. coli. Okay, so this operon is regulated when tryptophan is present in the environment. Then the genes of the tryptophan synthesis are not expressed. This operon is an important experimental system for learning about gene regulation. That's why it is included in your syllabus, and it is commonly used to teach the gene regulation. You already know that this tryptophan operon contains 5 structural genes: TRPE, TRPD, TRPC, TRPB, and TRPA, which encode enzymatic parts of the pathway of tryptophan biosynthesis. It also contains a repressive regulator gene, TRPR. This TRPR has its own promoter upstream, where RNA polymerase binds and synthesizes messenger RNA for this regulatory protein. This is messenger RNA for this TRPR. यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर TRPR का ट्रांसलेशन होगा मैसेंजर आरएनए का, देन TRP रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा. Okay, the protein that is synthesized by TRPR then binds to operator, which then causes the transcription to be blocked. Okay, only when this TRP regulatory protein is bound to TRP tryptophan, then it can bind to the DNA present in the operator region, and thereby it prevents the transcription of these genes. So it prevents the transcription initiation. So the transcription doesn't start. Okay. So in this situation, repression is of RNA polymerase is blocking the expression of these structural genes. Okay. Here you can see that unlike lac operon, TRP operon contains a leader peptide and an attenuator sequence within this. I will come to that when I will discuss attenuation. See, this is the structure of lac operon. In the exam, you can draw this picture. After operator region, you can observe here there is a leader sequence. And this leader sequence is called as TRPL. यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऑरेंज कलर है TRPL है. इस लीडर सीक्वेंस के अंदर एटीन्यूएटर सीक्वेंस है. एटीन्यूएटर सीक्वेंस के अंदर 4 तरह के सीक्वेंस है. उनका नाम है 1, 2, 3 and 4. सीक्वेंस 1, sequence 2, sequence 3 and sequence 4. One can complement with this
sequence 2. Sequence 2 can complement with sequence 3. Sequence 3 can complement this. These between 1 and 2 there is a partial uh, sequence. Uh, it can partially complement this sequence 1, and one can partially complement the sequence of 2. It means one can pair with the sequence present at sequence 2, and sequence 2 can pair with the sequence present on sequence 3. Okay, I will describe this later. Focus here. So this is the leader sequence. लीडर सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन होता है. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट यहीं पर है. ऑपरेटर रीजन खत्म हुआ, लीडर सीक्वेंस स्टार्ट हुआ. दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट. ओके, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट. लीडर तो मैसेंजर आरएनए यहीं से बनना शुरू हो गया इस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री, और मैसेंजर आरएनए पर जो सीक्वेंस है, ये लीडर सीक्वेंस जो मैसेंजर आरएनए पर आया, दैट विल बी ट्रांसलेटेड लेटर, और उसके बाद स्टॉप कोडोन आएगा, आता है. ठीक है, 14 अमाइनो एसिड का एक शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होता है, फिर स्टॉप कोडोन आ जाता है. उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल जीन्स का स्टार्ट कोडोन आता है. तो इसको आप ऐसे समझिए. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लीडर पेप्टाइड है का सीक्वेंस है, एक एटेन्यूएटर का सीक्वेंस है. ओके, दिस एटेन्यूएटर सीक्वेंस allows the graded regulation. So this is an example of repressible negative regulation of gene expression. Okay, because this protein TRPR, when synthesized, it is constitutively expressed, यानी हमेशा इसका प्रोटीन का सिंथेसिस होता रहता है, एक्सप्रेस होता रहता है. और ट्रिप्टोफैन, if tryptophan is present and if it binds to the repressor, then it blocks the gene transcription. Okay, so this is an example of repressible negative regulation of gene expression. Within the operon's regulatory sequence, these are the regulatory sequence of the operon: TRPL, O, operator region, promoter region. Okay, this operator is bound to the repressor protein in the presence of tryptophan, and this is the mechanism for preventing the transcription. And it is liberated in the tryptophan's absence. Thereby, it is allowing the transcription. In the presence of tryptophan, tryptophan binds to the regulatory repressor protein and it blocks the transcription. But when tryptophan is not there, then tryptophan gets released from this repressor protein and then it allows the transcription. So thereby, it is making the repressor protein inactive and it does not bind to the DNA. Okay, so repressor part is clear to you. Repression is very simple. This is repression. Okay, फिर से बता देता हूँ आपको.
कि this operon operates by a negative repressible feedback mechanism. The repressor for the TRP operon is produced upstream. अपस्ट्रीम हम लास्ट क्लास में जो बार बार अपस्ट्रीम बोल रहे थे उसके लिए सॉरी डाउन स्ट्रीम बोलना चाहिए था, स्लिप ऑफ टंग हो रहा था। ओके सी यहाँ अपस्ट्रीम कहने का मतलब हुआ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से पहले अपस्ट्रीम, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के बाद में राइट साइड में वो होता है कहलाता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो repressor for the TRP operon is upstream, is produced upstream by TRPR gene, which is constitutively expressed at a low level. After translation of TRPR messenger RNA, TRPR monomers are synthesized. And these monomers associate into dimers. This is a dimer. When tryptophan is present, these tryptophan repressor dimers bind to tryptophan. It is binding to tryptophan, causing a change in the repressor conformation. You can observe here there is a change in the shape, allowing the repressor to bind to the operator. Because of this change, this is allowing the repressor to bind to the DNA in the operator region. By this, it is preventing RNA polymerase from binding to and transcribing the operon. तो ये यहाँ बैठ गया तो रास्ता अवरुद्ध हो गया, प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज बैठ भी जाएगा तो आगे जा नहीं सकेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जो है यहाँ पर, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट होने ही नहीं देता है ये रिप्रेसेबल सिस्टम में। और एटीन्यूएशन सिस्टम में मैकेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। ओके, वो हम अभी बताएंगे आपको। तो ये इतना समझ में आया। इट इज tryptophan repressor dimers are binding to tryptophan, causing a change in the repressor conformation here, and thereby it is allowing the repressor to bind to the operator. This prevents RNA polymerase from binding to and transcribing the operon. So the tryptophan here is not produced from its precursor. When tryptophan is not present, repressor is in inactive conformation and it cannot bind to the operator region. So transcription is not inhibited by the repressor if tryptophan is not present. So this is how they are ensuring the components of tryptophan biosynthetic pathway when tryptophan is not there. Okay, students. Now coming to the second mechanism for the regulation of tryptophan operon, that is attenuation. Okay, this is repression. अब हम attenuation पढ़ेंगे। इसके लिए एक पिक्चर लगाना होगा। I have one photo because in this it will not be clear to you. Okay, इसको लीडर सीक्वेंस जो है TRPL, इसको मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा। इसके अंदर इस सीक्वेंस, ये जो ऑरेंज कलर का सीक्वेंस, उसके अंदर जो रेड कलर का रीजन दिख रहा है,
इसको मैग्नीफाई करेंगे, इसके अंदर और क्या क्या है, क्योंकि एटीन्यूएशन यहीं से हो रहा है, TRPL से। Hope this is clear. Yes. And this is attenuation. Hmm. See what happens. This attenuation is the second mechanism of negative feedback in the TRP operon. Okay. The repression system was targeting the intracellular TRP concentration. Okay. Repression system was dependent upon the TRP concentration, amino acid का concentration. Okay. से ये डिपेंडेंट है, अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा, कम होगा तो स्विच ऑन हो जाएगा. But this attenuation is dependent upon the charged transfer RNA with TRP, with tryptophan. Charged transfer RNA, tryptophan charged transfer RNA. See how. Tryptophan repressor, TRPR repressor, this one, decreases gene expression by altering the initiation of transcription. ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन को ही बाधित कर देता है ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर, इस रिप्रेसर सिस्टम में. लेकिन एटेन्युएशन जो है यह अल्टर करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को, दैट इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का जो इलोंगेशन स्टेप है उसी में ये हॉल्ट लगा देता है. ओके, वहां स्टॉल कर जाता है, हॉल्ट हो जाता है, या हॉल्ट नहीं होता है या हॉल्ट हो सकता है. तो उस मैकेनिज्म से यह रेगुलेशन करता है. देखिए कैसे. ओके, देखिए एटेन्युएशन में क्या हो रहा है कि राइबोसोम्स ट्रांसलेशन को शुरू कर देते हैं. मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस चल रहा है, उस सिंथेसाइजिंग मैसेंजर आरएनए पर राइबोसोमल सब यूनिट्स अटैच हो जाते हैं. अभी मैसेंजर आरएनए का इलोंगेशन हो ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस. उस मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस कौन कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है, आगे चल रहा है. पीछे से राइबोसोमल सब यूनिट्स जो है उस नेसेंट मैसेंजर आरएनए पर अटैच हो जाते हैं और उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं. ट्रांसक्राइबिंग मैसेंजर आरएनए पर, ऑलरेडी ट्रांसक्राइबिंग मैसेंजर आरएनए पर ही ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. ओके, ये सारे प्रोकैरियोट्स में देखा जाता है. इसी प्रक्रिया का रोल है यहाँ पर एटेन्युएशन में.
that the ribosomes begin translating the messenger RNA while RNA polymerase is still transcribing the DNA sequence. So this is allowing the process of translation to affect the transcription of the operon directly. ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही होती है. तो ट्रांसलेशन अफेक्ट्स द ट्रांसक्रिप्शन. ओके, देखिए इस पिक्चर को आप समझिए, मैं यहां से आपको बताता हूं. यह डीएनए, दिस डीएनए इज कमिंग फ्रॉम टीआरपीएल. ये टीआरपीएल है ये रीजन, ठीक है. इस रीजन को मैग्नीफाई किए डीएनए, इसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है. इस डीएनए का आरएनए पॉलीमरेज चला, इसको ट्रांसक्राइब करते गया, ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब होकर के अलग हो गया. यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज अभी ट्रांसक्राइब कर ही रहा है था. ओके, और ये आगे चल रहा है. यहाँ देखिए इस पिक्चर में आरएनए पॉलीमरेज इज ट्रांसक्राइबिंग और पीछे मैसेंजर आरएनए का इलोंगेट हो रहा है. डीएनए में ये आगे की तरफ जा रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड इट इज डीएनए में 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड आरएनए का इलोंगेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रहा है. ओके, अब देखिए जब ये टीआरपीएल डीएनए सीक्वेंस ट्रांसक्राइब होके मैसेंजर आरएनए में आया तो उसमें 4 सीक्वेंस है. आपको बताया ही थे नाम 1, 2, 3 एंड 4. You can see here 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4 के बीच में कॉम्प्लीमेंटरिटी है, यानी 1 कैन पेयर विथ 2, 2 कैन पेयर विथ 3, 3 कैन पेयर विथ 4. बगल बगल वाला पेयर होगा, 1 4 के साथ पेयर नहीं हो सकता है. ओके, 1 अगर 2 के साथ पेयर हो रहा है और 2 3 के साथ पेयर हो रहा है, इट मींस 1 का सीक्वेंस और 3 का सीक्वेंस सिमिलर है. उसी तरह 2 और 4 का सीक्वेंस सिमिलर हो गया. ठीक है, इफ 2 इज पेयरिंग विथ 3, 3 इज पेयरिंग विथ 4, देन 2 इज इक्वल टू 4. 2 और 4 के बीच में बेस सिमिलरिटी होगा. तो बेस सिमिलरिटी में नहीं जाइए आप, यहाँ पर बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी में जाइए. यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटरी रूल के हिसाब से बेस पेयरिंग जो हो रहा है 1 और 2 के बीच में, क्योंकि इसके बीच में सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस है. 1 कैन पेयर विथ पार्शली पेयर विथ 2, और 1 और 2 सीक्वेंस अगर अगल बगल है एंड दिस कैन हाइब्रिडाइज, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, एक हेयर पिन लूप बन जाएगा. 1 सीक्वेंस एंड 2 3 के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा अगर, तो फिर अगेन हेयर पिन लूप बन जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस होमोलॉजी सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंटरी है दोनों का. 3 4 के बीच में भी लूप बन सकता है. यहाँ देखिए 3 4 के बीच में लूप है. 1 और 2 के बीच में जो लूप है दैट इज रेयरली सीन. ओके, अगर 1 और 2 के बीच में बन गया लूप, तो 2 और 3 के बीच में नहीं बन सकता है. ओके, अगर 2 और 3 के बीच में लूप बन गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, 2 और 3 के बीच में बन गया, तो 1 और 2 का नहीं बन सकता है, 3 और 4 का नहीं बन सकता है लूप. तो इसमें जो लूप है 3 और 4 वाला लूप इज कॉल्ड एज टर्मिनेटर
लूप। दो तरह के लूप होते हैं, टर्मिनेटर लूप और नॉन टर्मिनेटर लूप। इसमें 3 और 4 के बीच में जो लूप बना, ये जो लूप है, अभी हम आपको ऊपर से समझा रहे हैं, आप इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। 2 और 3 के बीच में जो लूप बनता है उसमें ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूड रहता है, लेकिन 3 और 4 के बीच में जब लूप बन जाता है तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि 3 और 4 वाला लूप जो है ये आरएनए पॉलीमरेज के बगल में है और ये इसको ढकेल देता है, रिप्लेस कर देता है, ये लूप इसको डिस्प्लेस कर देता है। तो आरएनए पॉलीमरेज लीव्स फ्रॉम देयर, सो हियर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स। लेकिन 2 और 3 के बीच में अगर लूप है तो दिस विल नॉट स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज दूर है इससे। ओके, और ये कब बनता है, क्यों 2 और 3 के बीच में बनता है और क्यों 3 और 4 के बीच में बनता है, इसका कारण है ट्रिप्टोफैन का लेवल। ये 1 2 3 4 जो सीक्वेंस है, इसमें 1 वाला सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस कोड फॉर, इसका ट्रांसलेशन हो रहा है मैसेंजर आरएनए का, दिस कोड्स फॉर 14 अमाइनो एसिड लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड 1 सीक्वेंस, और इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देता है राइबोसोम। लेकिन इस 14 अमाइनो एसिड में 2 अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन के हैं इसमें, यानी इसमें ट्रिप्टोफैन का एंटी कोडोन है 1 सीक्वेंस में। तो अगर ट्रिप्टोफैन मीडियम में अवेलेबल है तो transfer RNA charged with tryptophan amino acid will come here, and amino acid tryptophan will be incorporated in this leader peptide. If the level of tryptophan is high, if the level of tryptophan is high, then this complete synthesis of leader peptide will take place, because it requires tryptophan. इस पॉलीपेप्टाइड में 2 अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन के हैं, तो उस ट्रिप्टोफैन का इंक्लूजन हो जाएगा। हाई ट्रिप्टोफैन है तो पेप्टाइड का सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा, और पेप्टाइड का सिंथेसिस जब कंप्लीट होगा तो दिस राइबोसोम इज बिग इनफ टू मास्क सीक्वेंस नंबर 2। क्विक प्रोसेस है, ट्रांसलेशन तुरंत हो जाता है, जैसे स्टार्ट हुआ, अगर ट्रिप्टोफैन सारे 4 अमाइनो एसिड इसको मिलते गए सारे एंटीकोडोन के, यहाँ पर एंटीकोडोन था ट्रिप्टोफैन का, लास्ट में 2 एंटीकोडोन अगल बगल और चार्ज यहाँ पर कोडोन थे ट्रिप्टोफैन के, और चार्ज ट्रांसफर आरएनए ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड के साथ आया, तो यहाँ पर इट विल एंटीकोडोन आर्म ऑफ द चार्ज अमाइनो एसिड विल हाइब्रिडाइज विथ द कोडोन प्रेजेंट हियर, और इस तरह से ट्रिप्टोफैन विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द पॉलीपेप्टाइड। लेकिन ट्रिप्टोफैन मौजूद नहीं है तो ट्रिप्टोफैन से चार्ज अमाइनो एसिड नहीं आएगा, राइबोसोम, तो यहाँ पर राइबोसोम रुका हुआ रहेगा, स्टॉल कर जाएगा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन रुक जाएगा अगर ट्रिप्टोफैन नहीं है तो, और ट्रांसलेशन रुकेगा तो सीक्वेंस नंबर 2 जो है वो फ्री रहेगा। देखो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन रुका हुआ है, ट्रांसलेशन रुका हुआ है, इनकम्प्लीट लीडर पेप्टाइड है, बिकॉज 2 TRP codons are there, and because TRP tryptophan is not available, so transfer RNA charged with tryptophan is not coming here, and tryptophan is not incorporating, so यहाँ पर राइबोसोम स्टॉल किया हुआ है, रुका हुआ है, ट्रांसलेशन पाउज हो गया है।
ट्रांसलेशन पाउज होने की वजह से, रुक जाने की वजह से इस सेकेंड रीजन इज अवेलेबल, ऑलरेडी ट्रांसक्राइब कर चुका है आरएनए पॉलीमरेज। सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि पहले सेकेंड ट्रांसक्राइब हुआ, आप कहोगे 3 और 4 के बीच में क्यों नहीं बना, तो आरएनए पॉलीमरेज इधर जा रहा है ना। तो पहले दूसरे को ट्रांसक्राइब किया, तीसरे को बनाया, तो दूसरा तीसरा जैसे ही बना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे का, ये हाइब्रिडाइज कर गया। अभी चौथा का सिंथेसिस चल ही रहा है। ओके, तो चौथा बनने से पहले दूसरा तीसरा बना, तो दोनों आपस में हाइब्रिडाइज कर गया, हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन हो गया। तो 2 और 3 के बीच में जो हेयर पिन लूप बनता है, देखो इस तरह का, इसको कुछ अलग आकार में दिखाया गया है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूड रहते हैं 2 और 3 के बीच में। लेकिन अगर 3 और 4 के बीच में हेयर पिन लूप बन गया, तो इट विल डिस्प्लेस द आरएनए पॉलीमरेज। ओके, तो अब इमेजिन कीजिए ट्रिप्टोफैन अवेलेबल है, ट्रिप्टोफैन अवेलेबल है, तो ट्रांसफर आरएनए चार्ज विद द ट्रिप्टोफैन इज आल्सो अवेलेबल, so ट्रांसलेशन विल कंप्लीट। तुरंत फास्ट गति से ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ, लास्ट कोडोन तक आया राइबोसोम उसको पढ़ने के लिए। उस चक्कर में राइबोसोम हैज मास्क द सीक्वेंस प्रेजेंट एट 2, उसके बाद स्टॉप कोडोन आ जाएगा यहीं पर, यहाँ पर ट्रांसलेशन स्टॉप हो गया, स्टॉप कोडोन। उसके बाद सीक्वेंस 2 का ट्रांसलेशन नहीं होता है, सीक्वेंस 3 और सीक्वेंस 4 का ट्रांसलेशन नहीं होता है, ट्रांसलेशन सिर्फ सीक्वेंस 1 का होता है। और उसी में स्टॉप कोडोन भी हो गया, ट्रिप्टोफैन कोडोन के बाद स्टॉप कोडोन आ गया, यहाँ ट्रांसलेशन इज कंप्लीट। सो इन दिस वे तुरंत ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ, तो सीक्वेंस नंबर 2 मास्क हो गया, राइबोसोम बड़ा है, मास्क हो गया, तो दूसरा सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है कि वो तीसरा के साथ पेयर कर सके, लेकिन तीसरा अवेलेबल है चौथा के साथ पेयर करने के लिए। तो इस कंडीशन में तीसरा और चौथा के बीच में स्टेम लूप फॉर्मेशन हुआ। सो नॉट इन दिस केस ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, एंड दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सिग्नल, a loop between the secondary structure formation between sequence 3 and sequence 4 of the TRPL region of tryptophan operon will prevent, will displace the RNA polymerase, and it will attenuate the expression of TRP genes. Okay, students. So here, what you are seeing is this attenuation is made possible by the fact that prokaryotes, which have no nucleus, the ribosomes begin translating messenger RNA, while RNA polymerase is still transcribing the DNA sequence. And this allows the process of translation to affect transcription of the operon directly. At the beginning, फिर से बता देते हैं, at the beginning of the transcribed genes, ये ट्रांसक्राइब होने वाले जीन्स हैं TRP, DCEP, ये इसके पहले TRP ओपेरोन में एक सीक्वेंस है 130 न्यूक्लियोटाइड्स का, ये सीक्वेंस TRPL पूरा यहां से लेके यहां तक, इसका नाम है TRPL, and this has been found that the attenuation efficiency is correlated with the stability of the secondary structure embedded in TRPL. And there are two constituent hairpins of the terminator structure, which is formed here. This TRPL transcript, after transcription, it includes 4 short sequences designated as 1 to 4.
and each of which is partially complementary to the next one. Thus, three distinct secondary structures, hairpins, can be formed between 1 and 2, 2 and 3, and 3 and 4. The hybridization of sequence 1 and 2 to form 1,2 structure is rare because the RNA polymerase waits for a ribosome to attach before continuing transcription past sequence 1. However, if the 1,2 hairpin were to be formed, it would prevent the formation of 2,3 structure, but not 3,4. So the formation of hairpin loop between the sequence 2,3 prevents the formation of hairpin loops between 1,2 and 3,4. The 3,4 structure is a transcription termination sequence. This 3,4 is a loop is this 3,4 loop structure, secondary structure, is a transcription termination sequence because it is abundant in GC. Once it forms, RNA polymerase will dissociate from the DNA and transcription of the structural genes of the operon cannot occur. Okay. This part of this leader transcript code for this is the attenuated messenger RNA, and this leader transcript, you can say this is the partial leader transcript. This leader transcript, part of it, not whole, क्योंकि फिर stop codon बीच में आ जाएगा, is codes for a short polypeptide of 14 amino acids. This region corresponds to sequence number 1. Okay, and this leader transcript is a 14 amino acid long polypeptide, and it is termed as leader peptide. This peptide contains 2 adjacent tryptophan residues. 14 amino acid में पॉलीपेप्टाइड में 2 ट्रिप्टोफान अगल बगल 2 ट्रिप्टोफान रेसिड्यूज हैं, जो कि एक असाधारण बात है क्योंकि ट्रिप्टोफान प्रोटीन्स में बहुत कम मिलता है। 100 अमाइनो एसिड में 1 अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान का हो सकता है, और यहाँ पर अगल बगल 14 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज के पॉलीपेप्टाइड में ही 2, वो भी अगल बगल एडजेसेंट हैं, ट्रिप्टोफान के रेसिड्यूज हैं। Because tryptophan is fairly uncommon amino acid, about 1 in 100 residues in a typical E. coli protein is tryptophan. 1 in 100 in E. coli protein on average. So the strand 1 in TRPL sequence, this constitutes the region encoding the trailing residues of the leader peptide. So TRP, arginine, threonine, serine, लास्ट के ये 5 अमाइनो एसिड हैं जो कि टीआरपी के बाद है। 2 टीआरपी रेसिड्यूज, फिर आर्जिनिन, फिर थ्रियोनिन और एक सीरीन, और ये 5 कोडोन्स कंजर्व्ड हैं।
इन पांचों कोडोन में अगर म्यूटेशन कर दिया जाए तो एटीन्यूएशन में फर्क हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा एटीन्यूएशन। इन पांचों कोडोन के अलावा अगर म्यूटेशन किए, यानी 14 अमाइनो एसिड लॉन्ग है तो 14 एंटी कोडोन हुआ। हर 14 कोडोन हुए, 14 कोडोन में से आप 14 कोडोन हुए, ठीक है। लास्ट का 5 अमाइनो एसिड, 2 ट्रिप्टोफैन, एक आर्जिनिन, एक थ्रेओनिन, एक सीरीन है। तो इन पांचों में अगर म्यूटेशन किया जाए तब एटीन्यूएशन में अल्टरेशन देखा जा सकता है। 5 के अलावा इन 9 में अगर चेंजेज आए तो इट इज नॉट ऑब्जर्व एनी इफेक्ट ऑन द एटीन्यूएशन प्रोसेस। नाउ सी दिस मैकेनिज्म कैसे हो रहा था, हम बताए ही आपको। If ribosome attempts to translate this peptide while tryptophan levels in the cell are low level of tryptophan अगर है तो, और राइबोसोम इसको ट्रांसलेट कर रहा है, मैसेंजर आरएनए बन गया, इसको ट्रांसलेट कर रहा है, तो क्या होगा? It will stall at either of the two TRP codons because TRP charge transfer RNA is not available because TRP level is low. यहाँ पर ये रुक जाएगा. It will stall at either of the two TRP codons. While it is stalled, ribosome फिजिकली सील्स सीक्वेंस 1. जब ये रुका हुआ है तो राइबोसोम जो है फिजिकली सीक्वेंस 1 को सील्ड किए हुए, घेरे हुए है. सो देयर इट इज नॉट अलाउइंग सीक्वेंस 1, सीक्वेंस एट nucleotides present at the sequence 1 to hybridize with the nucleotides present at the sequence 2. So it is preventing the secondary structure formation between sequence 1 and sequence 2. Okay. So it is preventing the sequence formation, hybridization between 1 and 2 because 1 is completely masked here. So one cannot hybridize with sequence 2. But sequence 2 is then free to hybridize with the sequence 3. Okay, to form 2,3 structure, which then prevents the formation of 3,4 structure. 2,3 structure पहले बन गया तो 3,4 नहीं बन सकता है. 3,4 termination hairpin will not form, which is why the 2,3 structure is called an anti-termination hairpin. So this is 2,3 structure is called anti-termination and 3,4 structure is termination hairpin loop. 2,3 structure is anti-termination hairpin. क्या बोलते हैं? एंटी-टर्मिनेशन हेयर पिन. हेयर पिन की तरह है. ठीक है. 2,3 के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, and because of that hybridization the secondary structure formed. This secondary structure is called anti-termination hairpin. In the presence of this 2,3 structure, RNA polymerase is free to continue transcribing the operon. This 2,3 hairpin loop, anti-termination hairpin loop, will not hinder RNA polymerase because it is behind it. RNA polymerase is ahead. So this will not hamper the transcription process. The transcription will be continued. Only the translation is stalled.
This translation is installed, but the transcription will be continued. And translation किस लिए installed है? क्योंकि इसमें TRP का कोडॉन है, TRP is not available. जस्ट एक तरह से सेंसर और स्विच का काम कर रहा है। यहाँ पर भी डिप्रेसर प्रोटीन भी सेंसर और स्विच का काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक ब्रॉड रेंज में रेगुलेट कर रहा है और ये फाइनली उसको एडजस्ट कर रहा है। ओके, डिप्रेशन मैकेनिज्म के द्वारा टीआरपी ओपेरॉन के जीन्स का एक्सप्रेशन 70 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, सेल बढ़ा सकता है या 70 गुना घटा सकता है इसके द्वारा रेगुलेट करके। बट एटेन्यूएशन के द्वारा रेगुलेशन से फिर फर्दर 10 टाइम्स ये एक्सप्रेशन को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो दोनों मिला के हो गया, दोनों सिस्टम, दोनों मैकेनिज्म साथ साथ काम करते रहते हैं, दोनों मिला के हो गया 700 टाइम्स। इट कैन मॉड्यूलेट द एक्सप्रेशन of the genes of the enzymes of tryptophan biosynthesis. Okay. आ रहा समझ में स्टूडेंट? अगर ट्रिप्टोफान का लेवल सेल में हाई है, आप देखिए हाई के कंडीशन में क्या होगा। इस कंडीशन में if the tryptophan level is high, then ribosome will translate the entire leader peptide without interruption, and it will only stall during translation termination at the stop codon. स्टॉप कोडन जब इसको घटाएगा तभी ये स्टॉल होगा, रुकेगा और वहां पर ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इस पूरे लीडर पेप्टाइड का ट्रांसलेशन हो गया और पूरे लीडर पेप्टाइड का ट्रांसलेशन होने की वजह से राइबोसोम इस लीडर सीक्वेंस के 1 वाले सीक्वेंस के लास्ट तक ये आया राइबोसोम उसको सिंथेसाइज करने, जिस वजह से राइबोसोम हैज मास्क्ड द सीक्वेंस ऑफ नंबर 2। Okay, at this point ribosome physically seals both sequences 1 and 2. Okay, because it is reading the stop codon and translation is terminating at the stop codon. So at this point ribosome physically seals both sequences 1 and 2, और 1 और 2 को सील्ड किए हुए है फिजिकली, तो 3 and 4 are thus free to form 3-4 structure, which is a termination hairpin structure which terminates the transcription. And this terminator structure forms when no ribosome stalls in the vicinity of the TRP tandem. TRP tandem यानी दो TRP के कोडॉन है। Okay. इस तरह से एटेन्यूएशन हो रहा है। So this attenuation mechanism is experimentally also supported, and it has been demonstrated that this mechanism is working. म्यूटेशनल एनालिसिस के द्वारा उन्होंने कंफर्म किया इन्वेस्टिगेटर्स ने, और इस पूरी प्रक्रिया का कैसे हो रहा है उन्होंने एलुसिडेट किया। ओके,
this is the attenuation mechanism and repression mechanism in E. coli. होप कि आप समझ गए होंगे। एटेन्युएशन सिंपल है, लीडर सीक्वेंस में TRPL में 4 सीक्वेंस है, 1 2 3 4 इसके अंदर, जिसमें पार्शियल जो कि पार्शियली कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3, ठीक है, ऐसे ऐसे समझा दिए। और इसमें 1 ट्रांसलेट भी होता है, तो राइबोसोम जब 1 को ट्रांसलेट करने पहुंचा और 1 में स्टॉप कोडन भी है, तो इस ट्रांसलेशन में 2 TRP ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड भी इनकॉर्पोरेट होंगे पेप्टाइड में, तो उसके जो 2 कोडॉन है, ट्रिप्टोफैन अगर नहीं होगा तो वो कोडॉन पर चार्ज ट्रांसफर RNA ट्रिप्टोफैन के साथ नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर RNA ट्रिप्टोफैन विल नॉट फॉर्म इफ ट्रिप्टोफैन लेवल इज लो, वो नहीं आएगा तो ट्रिप्टोफैन इनकॉर्पोरेट नहीं होगा, यहाँ पर ट्रांसलेशन रुक जाएगा, पाउज हो जाएगा। तो यहीं पर पाउज हो गया तो 2 फ्री हो रहता है, 2 सील्ड नहीं हुआ। जब लास्ट तक ट्रांसलेशन करने में आया यानी ट्रिप्टोफैन इनकॉर्पोरेट हो गया, तो तब राइबोसोम आगे बढ़ चुका है, वो 2 को भी सील्ड कर लिया फिजिकली, 1 और 2 दोनों सील्ड हो गए, तो इसके बीच में नहीं हो सकता है पेयरिंग, 3 और 4 के बीच में हो जाता है। लाइक दिस you will, I hope I have explained you this in detail. See, one more thing, क्योंकि ये इक्वलाई में हम लोग देख रहे हैं, आपके सिलेबस में है, वही मैं देख रहा था कि बैसिलस सबटिलिस में TRP ओपेरॉन का रेगुलेशन कैसे होता है। एटेन्युएशन इन बैसिलस सबटिलिस, ये तो इक्वलाई का है। बैसिलस सबटिलिस में TRP ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का, ओके, तो थोड़ा सा वहां डिफरेंट है बैसिलस सबटिलिस में क्योंकि TRP ओपेरॉन जीन्स आर उसी तरह से जैसे ई कोलाई में अरेंज्ड हैं, वैसे ही बैसिलस सबटिलिस में भी अरेंज है, लेकिन रेगुलेशन में फर्क है। रेगुलेशन ऑफ TRP ओपेरॉन्स इन बोथ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट इन द सेल। ये तो दोनों में है, ट्रिप्टोफैन सेल में है या नहीं है, ये इस पर निर्भर करेगा कि ओपेरॉन स्विच ऑन होगा कि स्विच ऑफ होगा। However, the primary regulation of tryptophan biosynthesis in Bacillus subtilis is via attenuation. Attenuation वहां पर प्राइमरी मुख्य रेगुलेटरी मैकेनिज्म है Bacillus subtilis में, rather than repression. E. coli में रिप्रेशन मुख्य मैकेनिज्म है, ये 70 गुना तक मॉड्यूलेट कर सकता है ऊपर नीचे इसके एक्सप्रेशन को, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन की जीन के एक्सप्रेशन को। और बैसिलस सबटिलिस में एटेन्युएशन इज द मेन प्राइमरी रेगुलेटरी मैकेनिज्म rather than the repression mechanism. तो यहाँ पर एक प्रोटीन इन्वॉल्व है बैसिलस सबटिलिस में, जिसका नाम है TRAP प्रोटीन, ठीक है, ट्रिप्टोफान एक्टिवेटेड आपका RNA बाइंडिंग एटेन्युएशन प्रोटीन। अभी किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, बैसिलस, शॉर्ट में डिस्कस कर ले रहे हैं बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, क्या है, प्रोकैरियोट है, ओके, ई कोलाई भी क्या है, प्रोकैरियोट है। तो बैसिलस सबटिलिस में क्या होता है कि एटेन्युएशन मैकेनिज्म इज द प्राइमरी रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। यहाँ पर देयर इज अ प्रोटीन व्हिच इज इन्वॉल्व हियर,
The name is TRAP protein. ट्रैप प्रोटीन फुल फॉर्म है ट्रिप्टोफान एक्टिवेटेड आरएनए बाइंडिंग एटेन्युएशन प्रोटीन. Okay. This protein binds to 11 subunit tryptophan activated RNA binding. Because this protein is having 11 subunits, and these subunits bind to 11 AUGU rich sequences. बस इतना जान लीजिए. क्या होता है कि एटेन्युएशन प्रोटीन ये एक्टिवेट होते हैं टीआरपी's एबिलिटी, ये प्रोटीन जो है आरएनए बाइंडिंग एटेन्युएशन प्रोटीन TRAPs which activates TRP's traps ability to bind to the TRP leader RNA. TRP यह प्रोटीन जो है this protein binds with the DNA not DNA, messenger RNA. TRPL मैसेंजर आरएनए. TRPL मैसेंजर आरएनए को ये लपेट लेता है ट्रैप प्रोटीन. ट्रैप प्रोटीन के 11 सब यूनिट्स जो हैं इसकी एफिनिटी है GU रिच रीजन्स जो प्रेजेंट हैं TRPL मैसेंजर आरएनए में. TRPL मैसेंजर आरएनए ये तो स्टार्ट साइट था ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ तो नहीं होगा, इधर यहाँ से स्टार्ट हुआ ट्रांसक्रिप्शन. TRPL सीक्वेंस का पहले ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसी सीक्वेंस को TRAP प्रोटीन बाइंड कर लेता है मैसेंजर आरएनए से. ओके. आरएनए से ये बाइंड कर गया तो फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होता है स्ट्रक्चरल जीन्स का. So TRP's ability to bind to the because TRP is having the ability to bind to the TRP leader RNA, messenger RNA. So this और ये कैसे एक्टिवेट होता है TRAP प्रोटीन. TRAP प्रोटीन एक्टिवेट होता है ट्रिप्टोफैन के बाइंड होने से. When tryptophan binds to the 11 subunit tryptophan activated RNA binding attenuation protein TRAP, it activates TRAP's ability to bind to the TRP leader RNA. TRP leader RNA से बाइंड करने से पहले if it is bound with tryptophan, then TRAP can bind with TRP leader messenger RNA. If tryptophan is not present, then it cannot bind to this messenger RNA. तो इस तरह से ट्रिप्टोफान पहले TRAP से बाइंड किया, TRAP फिर जो है लीडर मैसेंजर आरएनए से बाइंड करके ट्रांसलेशन को स्टार्ट होने से रोक देता है. इसमें ट्रांसक्रिप्शन
तो हुआ, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं हुआ। ओके, which binding to TRP activated TRAP to leader RNA results in the formation of terminator structure that causes transcription termination. और यह binding this TRP TRAP binding with the TRP leader messenger RNA, this whole structure is transcription terminator. No, transcription terminator. हाँ, ये ट्रांसक्रिप्शन आगे चल रहा है, आरएनए पॉलीमरेज है। अगर टीरैप ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर स्ट्रक्चर का, टीरैप के साथ टीआरपी लीडर मैसेंजर आरएनए, इसमें 11 सब यूनिट्स हैं, वो इसके साथ बाइंड किए हुए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, देन दिस स्ट्रक्चर विल डिसोसिएट आरएनए पॉलीमरेज व्हिच इज रनिंग अपस्ट्रीम which is running downstream to this. So RNA polymerase को डिसोसिएट करके देगा DNA से, and the transcription will stop. Okay, binding of TRP activated TRAP to leader RNA results in the formation of a terminator structure that causes transcription termination. So this is all about students tryptophan operon. अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अरेबिनोज ओपेरॉन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।